حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہو۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے تندرستی دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ سورہ انعام جس مریض پر بھی پڑھی جائے اسے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو سنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں ہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔
जो लोग बर्दाश्त करते हैं उनके साथ उठा बैठा करो, इस तरह तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ेगी। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसको अल्लाह ने बनाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छू कर भी अपनी गर्दन झुका कर रखता है। अक्लमंद वो है जो शख्स अंजाम सोच कर काम करे। कभी मुश्किल में किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो चुकी है। जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर ज़िंदगी तक महदूद होते हैं, आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे रूहानी मोहब्बत हो। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, उसमें कभी भी खयानत मत करना। दिल जीतना चाहते हो तो आवाज़ में नरमी पैदा करो। जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने लगा है। सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 2 काम बहुत मुश्किल हैं, एक इसके साथ रहना जिसके साथ मोहब्बत ना हो, दूसरा उसके बगैर रहना जिससे मोहब्बत हो। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो इसके नसीब में भी नहीं लिखा होता। अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात होनी चाहिए। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई किसी न किसी जगह आपके लिए दुआ कर रहा है। हमसफर खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। अच्छे के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के लिए बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ कर सकते हो, खून से खून नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो फिर भी तुम्हें इज्जत दे और प्यार दे, बेशक वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि तहज्जुद के वक़्त अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते रहते हैं, उन्हें ये खबर ही नहीं होती कि उनके रब ने उनके हक़ में और भी बेहतर लिखा होता है। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 2 काम बहुत मुश्किल हैं, एक उसके साथ रहना जिससे मोहब्बत ना हो, दूसरा उसके बगैर रहना जिससे मोहब्बत हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो नमाजी ईशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ता है, अल्लाह उसे कब्र की सख्ती, मौत की तलखी और जहन्नम की गर्मी से महफूज रखता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो ना उम्मीद रखो ना शिकवा करो। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, रिश्तों के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। अगर कोई तुमसे जलता है तो बजाय गुस्सा होने के उनकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे।
लोगों के साथ ऐसा बर्ताव रखो जैसा बर्ताव तुम अपने लिए पसंद करते हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ज़्यादा सोचने से बेहतर है इस्तग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें ख्याल रखने वाला हमसफ़र मिलता है और दूसरा वो जिनके पास माँ की दुआएं होती हैं। मुस्कुराहट रूह के दरवाजे खोल देती है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा है। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान की ज़हनियत भी अजीब है। बीमारी के खौफ से खाना तो छोड़ सकता है, लेकिन दोज़ख के खौफ से गुनाह नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की अनायत है। ज़िंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। मुसीबत के आलम में भी मुतमईन नजर आओ और मुश्किलात के बावजूद खुशबाश रहो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान लाता है तो वो उसकी हिफाजत और पनाह में आ जाता है, और जो उस पर भरोसा रखता है वो अपने सब काम उसके सुपुर्द कर देता है। मोमिन उसके साथ भी इंसाफ करता है जो उसके साथ इंसाफ नहीं करता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई चीज़ अपने वालिदैन को दो तो इस तरह दो जिस तरह कोई गुलाम अपने आका के सामने कोई चीज़ पेश करता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी, मुश्किल वक्त पर सब्र करना और बेहतर वक्त पर शुक्र करना मोमिन की पहचान है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही इंसान की सबसे बड़ी इस्लाह और इसमें ही फलाह है। नापसंद सिफात से परहेज करने से कामयाबी हासिल होती है। जो शख्स यतीमों और मस्कीनों का खबरगीर हो वो अल्लाह ताला के यहाँ मोअज़्ज़िज़ है। जहाँ भी रहो खुदा से डरो, हमेशा हक बात कहो अगरचे तल्ख हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के मेवे का पता बताऊं? वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, मगर इखलास के साथ। लोगों से इस तरह घुल मिल जाओ कि अगर मर जाओ तो वो तुम पर रोएं, और अगर कहीं चले जाओ तो तुम्हारे आने के मुंतज़िर रहें। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवारता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। जब दिल घबराए तो सूरह अलम नशरह पढ़ लिया करो, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा होते हैं। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। अच्छे वक़्त की 5 निशानियाँ। फजर के वक़्त आँख खुलना, जिसको दीन की समझ आनी शुरू हो जाए, जो आजमाइश के वक़्त सब्र से काम ले, चेहरे पर रौनक आने लग जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब किसी के चेहरे पर रौनक आनी शुरू हो जाए तो समझ लेना अच्छा वक़्त आने वाला है। जिस इंसान के खर्चे में कमी आने लग जाए और रिस्क में बरकत पैदा हो जाए। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। माल, औलाद और ज़िंदगी दुनिया की जीनत है, और नेक अमल आखिरत की खेती है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर नमाज पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी।
ایسی تمام باتوں اور کاموں سے پرہیز رکھ جو آخرت اور دین کی خرابی کا باعث ہیں۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگ جاؤ تو سمجھ جانا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے، یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو، نہ شکوہ کرو۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔
किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें उतना ज़्यादा अता करेगा। अगर सब्र करोगे तो अल्लाह ताला हर मुसीबत के अवज़ नेमत अता फरमाएगा। बेवकूफ़ औरत अपने शोहर को गुलाम बनाती है और गुलाम की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन अक्लमंद औरत अपने शोहर को बादशाह बनाती है और बादशाह की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजारती है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है, बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और ईमानदार को बेवकूफ़ समझती है। अगर तुम उसे न पा सको जिसको तुम चाहते हो, मगर उसे ज़रूर पा लेना जो तुम्हें चाहता हो, क्योंकि चाहने से चाहिए जाने का एहसास ज़्यादा खूबसूरत होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसे दुख ना दो। लोगों को इसी तरह माफ़ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। कपड़े, शक्ल और ज़ुबान हमेशा झूठ बोलती है। इंसान की असलियत वक़्त आने पर पता चलती है। अल्लाह आज़माता है इस चीज़ से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती है, ताकि इस चीज़ के मिलने की तरफ तुम्हें अल्लाह से मिला दे। तबीयत में नरमी और सखावत इंसान को दुश्मनों के दिलों में भी महबूब बना देती है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। गम को दूर करने वाली बेहतरीन चीज तकदीर इलाही पर भरोसा करना है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हर मुश्किल के वक़्त कहा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, मुश्किल आसान हो जाएगी। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं। तकदीर से ज़्यादा चाहता है, वक़्त से पहले चाहता है। अगर तुम इस वक़्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। जिसे मौत का इंतज़ार होता है वो नेक कामों में जल्दी करता है। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए रूह में निखार पैदा होता है। अपनी जवानी के धोखे में मत आना कि ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मोहब्बत दूर के लोगों को करीब, अदावत करीब के लोगों को दूर कर देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दौलतमंद होने से इंसान अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने पर लोग उसे भूल जाते हैं। सिर्फ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रुसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, वो है अल्लाह की मोहब्बत। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। ऐ लोगों, दुनिया को छोड़ दो कि दुनिया की मोहब्बत अंधा, बहरा और गूंगा बना देती है और सरबुलंद अफराद को भी ज़लील और रुसवा कर देती है। जो आदमी अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह ताला उसकी अकल में रोशनी और नूर पैदा कर देता है। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज़्यादा बदतर होती है। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इज्जतदार मर्द की निशानी ये है कि वह औरत को कभी गाली नहीं देता। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी।
अक्ल मंद वो है जो अपनी जुबान को गीबत से बचाए और मोमिन वो है जिसका दिल शक से पाक हो। अक्लमंदी ये है कि तुम वो कहो जो जानते हो और जो कहो उस पर अमल करो। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ के बदले तुम्हारे लिए कितनी आसानियां लिख दी जाती हैं तो तुम कभी भी अपने हाल पर ना रोओगे। अपने जज्बात जाहिर करो तो सिर्फ अल्लाह पाक के आगे। कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता सिवाय अल्लाह पाक के। इंसान वाहद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। एक बात पर ईमान रखो कि जब अल्लाह की रज़ा होगी तब हर चीज़ अता होगी। खामोशी अपना लो मगर किसी से शिकवा ना करो। जब इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कर लो। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए मगर बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी वजह से कोई रोए। फर्श वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर अर्श वाले से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत है। अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा ना संवारो, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपने रूह को संवारो क्योंकि उसे अल्लाह ताला के पास जाना है। जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही ख़त्म हो रही हो तो आप दुरूद शरीफ की कसरत करें, मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक से कभी ना उम्मीद मत होना क्योंकि वो कतरा मांगने पर भी समंदर अता कर देता है। अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दो लेकिन इन लोगों को कभी माफ़ ना करो जो तुम्हारे रिज़्क़ और इज़्ज़त के दुश्मन हों। आकिल अपने काम पर और जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। आकिल कमाल चाहता है और जाहिल माल चाहता है। अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना वरना गुलामी आदत बन जाएगी। जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से नफ़ा पहुंचने की उम्मीद रखता है उसकी उम्मीदें झूठी साबित होती हैं। कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हुआ तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना उस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। जो ज़्यादा हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है, जो ज़्यादा गुस्सा करता है वो जल्द हलाक हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें दोस्त दुश्मन सब से अदल करने की और अमीरी गरीबी में खुदा से डरते रहने की वसीयत करता हूँ। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। जो अपने गुस्से पर गालिब आ जाए वो शैतान पर फतह पाता है। जो अपने गुस्से से मगलूब हुआ शैतान उस पर फतह पाता है। मदद करना एक महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी तवक्का नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। इस चीज़ का गम ना करें कि आपने गलत इंसान पर मोहब्बत ज़ाया कर दी है क्योंकि अल्लाह ताला वही मोहब्बत आपको सही इंसान के ज़रिए वापस लौटा देगा। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक़्त वो मजबूर हो और तुम गलत फहमी में एक अच्छा दोस्त खो बैठो।